is not magnetic personality. That can just as well be a grip tongue. It's not making friends and influencing people. That's flattery. Leadership is a person's vision to high heights, the raising of a person's performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitation. Good evening. To all the ladies and folkmen in the house tonight, your host for the day is Pinkal Prajapati. I would like to thank each and every one of you for being here with us. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you, Vapi Industrial Association and Falgunam India Private Limited, Vikuri one who has listened it. A gentleman was once walking through an elephant camp and he spotted that the elephants weren't being kept in cages or held by the use of chains. All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. As the man gazed upon the elephants, he was completely confused as to why the elephant did not just use their strength to break the rope and escape the camp. They could easily have done so, but instead they did not try it at all. Curious and wanting to know the answer, he asked a trainer nearby that why the elephants were just standing there and never tried to escape. The trainer replied, when they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at that age it's enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe that they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. The only reason elephants weren't breaking free and escaping from the camp was that over time they adopted the belief that it was just not possible for them to escape. So moral of the story is, no matter how much the world tries to hold you back, always continue with the belief that what you want to achieve is possible. Believing you can become successful is the most important step in actually achieving it. So first, let's hear a huge round of applause for all the entrepreneurs, businessmen and industrialists present here who defied the orthodox beliefs and entered an uncharted field while believing in themselves and making their dreams a reality. To make this evening a blessed one, let's invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessing, I would like to invite our admirable President of VIA, Prakash Vadra Sir, to escort our highly regarded Chief Guest Speaker, Mr. Amol Wagde. I would also like to invite VIA Secretary, Mr. Satish Patel, along with Deepmala Desai, Alpa Kotadia and Samir Agarkar to join them. While we present you with a token of love.
है कि आज वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन को और उनकी पूरी टीम को आर्ट ऑफ लिविंग की फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा समन्वय के साथ बहुत अच्छा एक सेमिनार और एक टॉक हम आज करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रीज के मेंबर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सीईओ सब हमारे साथ हैं और अभी सर से बात हो ही रही थी कि ये जो ऑडिटोरियम बनाया गया है इसके पीछे भी काफ़ी विजन थे और जब ये ऑडिटोरियम यहाँ वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन में बनाया गया और पास्ट प्रेसिडेंट्स एंड फाउंडर प्रेसिडेंट्स सभी लोग ने डिसाइड किया कि यस एक चीज़ हमें ऐसी चाहिए जो ऐसे प्रोग्राम्स सोसाइटीज, समाज और एनजीओ के लिए हम दे सके और मेंबर्स उनका पूरा फायदा ले सके। और आज यही वजह से आज हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग, वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन और अमोल जी हमारे बीच है। और दोस्तों आज बहुत प्रोग्राम्स में आप आते होंगे और थोड़ा सा आपने रिनोवेशन और मॉडिफिकेशन भी देखा है। आज का हमारा जो हैप्पीनेस का मैसेज भी अमोल जी देने वाले हैं कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, बट खुश होकर काम करोगे तो जरूर खुशी मिलेगी। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी पूरी टीम ने ये ऑडिटोरियम के मॉडिफिकेशन के लिए जो मेहनत की और कम, क्योंकि यार बहुत दिन कम बचते हैं, कम मिलते हैं, उसमें सभी प्रोग्राम्स जो लाइनअप रहते हैं उसमें ये काम करना, तो ये मैं प्लेटफॉर्म से मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि यस उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। और आज सबसे पहला मॉडिफिकेशन होने के बाद, रिनोवेशन होने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग और अमोल जी के साथ हो रहा है, तो हमें आशीर्वाद भी उनका मिल चुका है। आज का जो टॉपिक है, we either make ourselves happy or miserable, amount of the work is the same। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे हम रोज आईने में देखते हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यस ये 1.5 आवर्स हम अमोल जी के साथ तल्लीन होकर पूरे टेंशन फ्री होके आज हम अमोल जी को सुनेंगे। और जब इंडस्ट्रीज के मेंबर्स हैं, एसोसिएशन तो प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए है ही, बट कहते हैं ना कि जो मेंटल ब्लॉक्स जो होते हैं वो मेंटल ब्लॉक्स को दूर करने के लिए जो बिजनेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी हमें उसका फायदा मिलेगा। तो मैं फिर से वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन और आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से अमोल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स पधारे हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। Now, without further ado, I would like to request Mrs. Deepmala Desai to come and introduce our guest speaker. The main question we need to explore is, are we living to be happy or are we happy and then living? Let's see guys. Good evening everybody. My name is Deepmala Desai. It gives me an immense pleasure for having this opportunity to introduce our guest speaker, Mr. Amol Wagle. Mr. Wagle is an all-rounder personality with a strict bubbling of entrepreneurship. He is an internationally rated chess player for over a decade now and has captained teams from Mumbai to victory in several prestigious chess tournaments. Now an international faculty with the Art of Living Foundation with over 15,000 plus teaching and training hours, Mr. Wagle has also been deeply engaged in transforming lives of top corporate professionals from multiple sectors across the globe through path-breaking innovative workshops and tailor-made learning and development initiatives. He strongly believes in celebrating life with knowledge. His key inspiration is sharing with Master Sri Ravi Shankar's vision of a violence-free, stress and free world. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Amol Wagle. Good evening, everybody. At this time also, you are energetic. That's really good for me. So, this will be an interactive session. It's not that I will only talk and you will listen and get thoroughly bored. So, हम ये interactive करते हैं session. What do you say? It's a good idea. So, VIA ने जो इनिशिएटिव लिया है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, इट्स रियली रिकमेंडेबल ना। वो बोलते हैं VIA को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाया, isn't it? If you want to reach to happiness, you have to go via VIA.
So that's how it is. अच्छा, मेरे वेशभूषा पे नहीं जाना आप, मैं बिल्कुल बोर नहीं करूंगा आपको। ये अक्सर ऐसी मान्यता है कि spirituality and business, commerce, they are in conflict with each other. But it is not like that. Yeah, they may appear opposite to each other, but they are complementary. One sets a platform for another. हम बोलते हैं बिजनेस से, कॉमर्स से क्या आएगा जीवन में? सुविधा आएगी, कंफर्ट आएगा, पर सुख आने का कोई गारंटी नहीं है। वो किससे आएगा? अध्यात्म से आएगा, स्पिरिचुअलिटी से आएगा। Do you agree with me? Yes or no? I've seen many people, they are too much into spirituality, but they somehow ignore or they avoid business, commerce, and vice versa. देखो, हम जब दोनों पैर पे खड़े रहने की क्षमता रखते हैं तो क्यों एक पैर पे खड़े रहे और सफर करें लाइफ में? I always say and I give example, Krishna the perfect management guru. या अगर हम लॉर्ड कृष्ण को भी देखते हैं, भगवान कृष्ण को, वो कैसे खड़े हैं? एक पैर उनका जमीन पर है, एक पैर हवा में उठा हुआ है इस तरह। Have you seen this photograph? I cannot ask, have you seen Krishna? उनका फोटो में तो हमने देखा होगा इस तरह। So, इसका मतलब क्या है? कई बार हमको हमारे संस्कृति में प्रश्न उछाला जाता है कि आपके भगवान है, isn't he not disciplined? Can't he stand still and properly? But there comes a knowledge behind it. Yeah? बोलते हैं एक पैर जो सीधा है जमीन पर, that leg leads to what? Materialistic life, business, commerce, earning, name and fame. और दूसरा पाव जो जमीन से ऊपर उठा है, that represents spirituality, जो uplifted है जीवन में। Are you listening? Yeah. So ये दोनों जब साथ में चलेंगे तभी जीवन में विकास होगा। बोलते हैं बिजनेस, कॉमर्स से सुविधा आएगी, अध्यात्म से सुख आएगा, ये दोनों का मिश्रण रहेगा तो ही जीवन सुख सुविधामय होगा। Yes or no? Yeah. So ये हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे कि ये दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपको। But over the period of time, what happens? Our education system has changed, upbringing has changed, our ideal people has changed. Yes or no? Yeah, I've personally done this survey. If you ask college-going or school-going kids, if we ask them who is your ideal, what do they say? They're superheroes, Marvels and DCs. Yeah, Batman, Superman. Nobody knows Hanuman actually. That's irony. Yeah, तो ये कहीं अपना कल्चर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और इसमें समवेयर वी आर लैकिंग वैल्यूज। तो वो वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए हमको अध्यात्म की जरूरत है। और सिर्फ अध्यात्म से नहीं चलेगा भाई, हृदय तो प्रेम से भरेगा पर पेट तो खाली रहेगा, और भूखे पेट से तो भजा नहीं जाता। आप सभी का अनुभव होगा ये। यस और नो? तो दोनों का मिश्रण होना जरूरी है। और आज का टॉपिक ही वो है, जॉयफुल लीडिंग। वन शुड नो हाउ टू लिव एंड लीड अवर लाइफ एंड द पीपल आर द कंपनी और द टीम अराउंड अस। सबसे पहले ये दोनों का मिश्रण आना चाहिए जीवन में, और मिश्रण आ गया आगे, नाउ वी आर रेडी, वी आर एलिजिबल टू लीड अहेड इन लाइफ। सो वो लीड करने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले जीवन में सक्सेसफुल होना। कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं यहाँ पर? अच्छा, जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं शायद ऑलरेडी सक्सेसफुल है। I really appreciate that. If you're already successful, then we should know how to move from one success to another. Isn't it? Yeah, yeah. So, success का definition, if you ask me, unshakable smile on the face is the sign of success. I have seen many people, they have chauffeur-driven car, bangla, jacuzzi, you name it, they have it. But they lack smile on their face. विपरीत परिस्थिति में एक चट्टान की तरह मजबूत कैसे खड़ा रहना है, ये हमको पता नहीं है कई लोगों को। And when we talk about external management, we don't know how to manage our mind.
If we learn how to manage our mind, we can manage anything and everything around us. Are you all with me on this? Everybody? Yeah? So वही थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हम यहाँ पर. And this is not a formal communication. एकदम casually बात करेंगे हम. Contact और connection में फर्क यही है कि नहीं? Normally we say I'm in contact with so and so people, but are you connected with them? मैंने हाल ही में एक कहीं पर पढ़ा मैंने कि एक बड़ा सा बिजनेसमैन था, या और उनके कई सारे फ्रेंड्स थे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, पर जब उनको जरूरत पड़ी, जब वो बीमार थे, हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ 2 लोग थे. सो ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद मेनी पीपल बट देयर इज नो कनेक्शन. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ? नॉट ओनली कॉन्टैक्ट्स बट कनेक्शन. और देखो ना, हम वही चीजें करते हैं जीवन में जो हमारे दिल को छूती है. दिमाग को छुई चीजों ने ज्यादातर तो प्रश्न और डाउट पैदा किए. है ना? अभी ये चीज आपको कहां छू रही है? दिल को छुएगी, यू विल स्माइल. दिमाग को छुएगी, यू विल आस्क हाउ. मेनी आर प्रूविंग नाउ बाय लाफिंग कि हमारे दिल को छुई है. तो कहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए 2 स्किल्स की जरूरत है हमारे जीवन में. वो 2 स्किल्स क्या है? एक तो सबसे पहली बात है डोमेन स्किल. डोमेन स्किल माने क्या? जो चीज हम कर रहे हैं जीवन में, नोइंग अवर सब्जेक्ट वेल. सपोज इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिंग एंड फ्लोरिंग. If you are a chartered accountant, you should know the basic difference between debit and credit. या अगर डॉक्टर है तो पता होना चाहिए भाई लंग्स कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते. So this is what is called domain skill, knowing your subject well. या और जो भी हम बिजनेस में हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ये सब क्या होगा? हमारा डोमेन स्किल. और दूसरा स्किल होता है जिसको हम कहते हैं लाइफ स्किल. लाइफ स्किल माने क्या? हाउ टू बी हैप्पी. जो एक जीवन खुशी के खोज में नहीं गवा रहा है बल्कि खुश होकर जी रहा है, ये हो गया लाइफ स्किल. दूसरा, हाउ टू बी एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, स्माइलिंग विदाउट एनी रीजन. हैव यू सीन पीपल स्माइलिंग विदाउट एनी रीजन नाउअडेज? हाँ, देखो ना, बेवजह कोई मुस्कुराए, हम जाके पूछते हैं भाई सब खैरियत? यस और नो? पर लटका हुआ चेहरा है, बिल्कुल चेहरे पर स्माइल नहीं है, तो कोई पूछता नहीं. दैट्स नॉर्मल नाउअडेज ना. तो ये बेवजह भी खुशी हो सकती है, हम हो सकते हैं, ये हम मानना ही अभी रह गया हमारा. तो ये हो गया लाइफ स्किल. हाउ टू फील दैट कनेक्शन विद एवरीबडी, हाउ टू क्रिएट हार्मनी एंड डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट लाइफ स्किल्स. सो ये जब सर्वे रिसर्च किया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज डोमेन स्किल जरूरी होगा और कितना परसेंटेज सॉफ्ट स्किल जरूरी होगा? टेक अ गेस. 75% लाइफ स्किल्स. ओके, व्हाट एल्स? 50-50 is a KBC answer. Doesn't work here. Take a wild guess. It's okay if you're wrong. Huh? 20-80? 40-60? Okay, let me tell you, we require domain skill only 15%. How many percent? 15%. So what is the rest now? 85% we require life skills. And unfortunately, our upbringing, rather education system is like that we have given 93% to domain skills. And only 7% to life skills. That is why, by and large, society is miserable. बेवजह कोई मुस्कुराता नहीं है, बेवजह मुस्कुरा है, उसको लेबल लगा देते हैं कि है कि नहीं. अच्छा, here you can smile without any reason, by the way. Isn't it? We all are mad. I call myself mad, making a difference. Yeah, so here smile without any reason is allowed. सबसे पहले आप मुस्कुराना जानते हैं कि नहीं? बताओ. देखो हाँ भी नहीं आ रही है जोर से. हाँ, पहले आप मुस्कुराओ, बाजू में देखो, बाजू वाला मुस्कुरा रहा है क्या? हंसना अलग है, मुस्कुराना अलग है. हाँ, एंड इट्स ओके इफ इट इज आर्टिफिशियल, डजंट मैटर. बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट. वंस यू मेक इट, यू डोंट हैव टू फेक इट. ये लाइफ स्किल हो गया ना.
तो 85% वी रिक्वायर लाइफ स्किल। देखो ना, हमको बचपन से ही जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप देखो, याद करो हमको इंस्ट्रक्शंस कैसे मिले बचपन से। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट बी जेलस, डोंट डू दिस, बट व्हाट शुड आई डू, हु विल टेल मी? Yes or no? Everybody wants other person should be ethical. What about me? Everybody wants, I want the best partner in life, but what about me? Charity begins at, oh, you know this. Yeah. So यही तो जर्नी की शुरुआत है। Life skills are very, very important in life. Just take an example, like if I gifted you a Ferrari, just imagine. Yeah. Just imagine I gifted you a Ferrari and I trained you thoroughly in domain skill, how to drive a Ferrari. But you are lacking soft skill, life skills to drive that Ferrari. What will be the result? क्या होगा रिजल्ट? हाँ? नहीं, 3 चीजें होगी। हॉस्पिटल, ग्रेवयार्ड, स्मशान, और तीसरा जेल। होता है कि नहीं? अगर हमको वो माइंड ही पीसफुल नहीं है, वो फेरारी को कैसे ड्राइव करना है, तो ये 3 चीजें होगी ही होगी जीवन में। और मेरा ये स्ट्रांग बिलीफ है कि जेल माने कुछ नहीं भाई, बेवजह मुस्कुराना, खुश रहना भी नहीं जानते, वो जेल से कम नहीं है। कुछ लोग ऐसे जी रहे, देखो कि भाई कभी मरने ही नहीं वाले, और मरना पड़ता है ऐसे कि कभी जिए ही नहीं। ये ग्रेवयार्ड से कम नहीं है। यस और नो? और हॉस्पिटल, देखो हमारे बिल से, डॉक्टर से अपने कितने सपने पूरे किए हैं कि नहीं किए? डू यू लाइक दैट? या आई नो चैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट दिस वे। है ना? यस, या सो बहुत जरूरी है वो। फेरारी, अगर वो लाइफ स्किल नहीं होगा, फेरारी का नैनो बनने में समय नहीं लगेगा। है ना? या सो वही है, वही लैकिंग है और कुछ नहीं। हमारे भारत में हम दोनों चीजें करते थे पहले। अध्यात्म भी होता था, उसका ज्ञान भी होता था, और व्यवहारिक ज्ञान भी होता था। और वही अभी कल्चर वापस ला रहे हैं अपने। जब ये स्पिरिचुअलिटी एंड कॉमर्स व्हेन दे कम टुगेदर, आई टेल यू दिस, दैट इज द होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जहां बोलते हैं ना कि ऊंचा पेड़ फलने के लिए, फूलने के लिए उसके रूट्स स्ट्रांग होना जरूरी है। बोलते ब्रॉडन योर विजन बट डीपन योर रूट्स। वो रूट्स कुछ नहीं हमारा अध्यात्म है, और लगे हुए फ्रूट्स कुछ नहीं, वो कॉमर्स है। सो व्हेन दे गो हैंड इन हैंड, there is no one and nothing can stop the progress of our country. Am I making sense to you? Yes or no? Yeah. So ये life skill and domain skill, ये 2 skills बहुत जरूरी है जीवन में। और हम ऑफिसेस में भी देखते हैं, नॉर्मली वी टॉक मोर ऑफ व्हाट, डोमेन स्किल्स। पर कहीं तो मैंने कई सारे ऑफिसेस में ऐसे वर्कशॉप्स लिए हैं जहां पर अभी ट्रेंड सेट हुआ, भाई पहले आए एम्प्लॉयज और आके एक 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करे। ध्यान करने के बाद मन शांत हो जाए तब काम करे। एफिशिएंसी विल इंक्रीज और नो? यस और नो? एंड अनफॉर्चुनेटली अवर बॉलीवुड ऑल्सो, no, our film industry also shown that way. Anything happens against the wish of hero, what hero does? Go and opens the bottle, smokes or drinks. Actually solution मिला है कभी उसमें? पहले तो 2 पैर पे ठीक से खड़े थे, वो लेने के बाद अभी वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। Yes or no? Nobody has shown okay that hero has sat and did meditation, जिससे मन शांत होगा और solution आएगा। है ना? Yeah, I have seen many offices. In fact, I run a company where our meditation is an integrated part of daily work. बहुत जरूरी है वो। बोलते हैं ना, ऊंची छलांग लगानी है तो पहले थोड़ा स्थिर होना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, तभी दूर की छलांग लगा सकते हैं हम। है कि नहीं? यस। तो जब हम ये पहले तो मन शांत हो गया, then we become eligible to lead. And to lead, what are the qualities? What do you require to lead? Tell me. Can some of you answer my question? If you want to lead, what do you require? Huh? Confidence. What else? Skills. Sharpen mind. Okay. Sorry. Wisdom, courage,
setting example by yourself. Balcony people, decision making ability, अरे ये सब कुछ नहीं है. If you want to lead, you need to have followers. And to create followers, you require all these things. कोई है ही नहीं पीछे, किसको लीड करेंगे? ये सब स्किल्स होके फायदा क्या? So first and foremost, leader should have this ability, this quality to take everybody along. And every time we won't get finished good. आसपास के लोग हम देखते हैं, everybody is not finished good, no, like us. That's what we think. नहीं, तो हर कोई हमारे जैसा नहीं है, हर कोई एक ही लेवल पर स्किल सेट नहीं लेके बैठा है. तो कभी कच्चा माल मिले, कभी पक्का माल मिले, वो कच्चा पक्का को साथ में लेके जाए, तभी तो ना वो बनेगा आगे. Yes or no? What is the first, the hurdle in this leadership? We want that everybody should behave according to my wish. Is it going to happen? Tell me. Is it possible? Sure. So sometimes we get bhindi in our plate. Sometimes we get karela. If you don't like karela, asking karela, okay, karela, you become bhindi. Karela, you become bhindi. Is it going to happen? Who will lose the peace of mind? करेला कड़वा है, पर अभी मन भी कड़वा हो गया उससे. और यही तो हो रहा है टीम बिल्डिंग में. कोई भी चीज को लीड करने के लिए सबसे पहले ये चाहिए, जो जैसा है वैसे अपने साथ लेके चलो आगे. जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर होके गए हैं पहले, या जो जिनको हम आइडियल मानते हैं, उन्होंने यही तो किया. और क्या किया है? जो जैसा है वैसे उसको साथ लेके गए आगे. वो बोलते हैं ना, हम तो चल दिए थे अकेले मंजिल की ओर, लोग आते गए कारवा बनता है. देखो आप सब जानते हो, बेवजह मुझसे बुलवा रहे हो. That's how it should be. First, ability is what? Quality should be taking everybody together along. और टीम का डेफिनेशन ही तो वो है. टीम बोलते हैं ना, TEAM, that is together everyone achieves more. That is team. है कि नहीं? Miracle. Yeah, together everyone achieves miracle. Another definition. ना? यही तो है. लीडर बोलते हैं ना कि जॉयफुल लीडिंग के लिए 5 क्वालिटीज जरूरी है. वो लीडर में क्या, ये मुख्य 5 क्वालिटीज होने चाहिए. वो लीडर कैसे होना चाहिए? समदर्शी, सत्यदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी और प्रियदर्शी. अब जो आपके लीडर्स होके गए, आइडियल पीपल, यू जस्ट रिकलेक्ट देम, दे आर हैविंग दिस 5 क्वालिटीज. समदर्शी, कैन यू सी हियर? समदर्शी, सत्यदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी एंड प्रियदर्शी. सो व्हाट इज समदर्शी? समदर्शी इज द वन हु इज हैविंग इक्वानिमिटी. कोई भी किसी भी चीज को, टीम को लीड करने के लिए इक्वानिमिटी बहुत जरूरी है. हम बोलते हैं ना भाई, सनराइज और सनसेट के वक्त, दोनों वक्त कैसा होता है? सूरज का रंग एक जैसा होता है. संस्कृत में सुभाषित भी है, बोलते उदय सविता रक्तो रक्तश्च स्तमये तथा संपत्तो च विपत्तो च महता में करूपता. बोलता हूं. या बुद्धिमानी, विजडम उसी में है जब अच्छे दिनों में और विपरीत दिनों में हम अपना समत्व बनाए रखें. दैट इज समदर्शी व्हेन इट कम्स टू यू. And when it comes to dealing with others, Samadarshi means what? The one who is unbiased. सबको एक जैसा देखता है वो, भले हर एक से व्यवहार अलग हो पर भाव एक ही हो. That is Samadarshi. Otherwise, leadership, when it becomes biased, groupism begins. Yes or no? Favoritism जहां आ गया, biased बन गया लीडर, वहां वो टीम को छेद पड़ गया, कोलैप्स हो गया वो वहीं पर. तो ये समदर्शी. दूसरा सत्यदर्शी, द वन हु विथस्टैंड्स द ट्रुथ, जो सत्य के पक्ष में, द वन हु इज नॉट मैनिपुलेटिव, हेराफेरी नहीं करेंगे. गेटिंग इट? हाँ, डिप्लोमेटिक हो सकता है. हम अक्सर ये सोचते हैं पर्सन हु इज डिप्लोमेटिक कांट बी ट्रूथफुल. नो, इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन. अ पर्सन हु इज डिप्लोमेटिक एट द सेम टाइम ट्रूथफुल. टेक द एग्जांपल ऑफ कृष्ण. So diplomatic he was. At the same time, he has given Bhagavad Gita also. Yes or no? Sure? Are you with me on this? So, Satya Darshi, जिसके साथ रहने से सत्य दर्श हो जाता है हमको, दर्शन दिखता है हमको.
The one who withstands the truth is called Satyadarshi. Then comes Doordarshi. Doordarshi माने क्या? Far sighted. जो अभी तुरंत फायदे का नहीं सोचे, तुरंत फायदे का कई बार चीज ऐसी होती है जो लंबे समय के लिए हमको नुकसान दे. No, whenever we lead, whether we are entrepreneur, businessman, trader, or anybody in the world, we are always having these two options in front of us. Number one, short-term gain but long-term pain, and other one is short-term pain but long-term gain. It is as simple as that. Yeah. And our mind, if you see our mind, it has always stuck with short-term gain, direct joy. Have you seen this? Yes or no? देखो, मन अक्सर वही चाहता है जिससे हमको तुरंत जॉय मिले. जैसे कि, can you give me example of direct joy? Watching movies maybe? Eating junk? Yes or no? Yeah, not exercising. Direct joy. Yes or no? 8 बजे, अभी थोड़ा और 5 मिनट, snooze and 5 minutes more and suddenly it's 9:30. डायरेक्ट जॉय मिलता है ना, वो 5 मिनट पोस्टपोन करके. होता है कि नहीं होता है? या, कैसा है ना, मन सबका एक जैसा है, यूरोपियन हो, सोमालियन हो कि वापी का हो. तो ये हो गया डायरेक्ट जॉय. And in this process of getting direct joy, we have ignored the indirect gain. ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमको तुरंत तो फायदा नहीं देती, पर लंबे समय के लिए उसका बेनिफिट होता है. द परफेक्ट एग्जाम्पल इज ब्रशिंग अवर टीथ. डू वी ब्रश एवरी डे हियर? Should I take this as a no, you laughter or what? So we don't brush our teeth every day. Does it give us eternal happiness? Direct joy? आज ब्रश किया, बताओ क्या करना है, आज प्रोडक्शन डबल कर डालते हैं. ऐसा होता है कभी? Never it happens. It doesn't give us direct joy. But it saves us from toothache, जो अभी नहीं, सालों के बाद आ सकता है. वो एफर्ट लेना पड़ता है, तब सालों तक वो दांत दर्द नहीं आता. Doing exercise, swimming, jogging, doing pranayam, some asanas, it may not give you direct joy, immediate joy, but it gives you long lasting joy. So वो लीडर में ये दूरदृष्टि हो, दूरदर्शी हो वो लीडर कि भाई अभी का फायदे का नहीं सोचे, दूर का सोचे. है ना? यस एवरीबॉडी? हाँ, तो ये तीसरा, ये हो गया दूरदर्शी. देन नेक्स्ट इज पारदर्शी, द वन हु इज ट्रांसपेरेंट. जैसी कथनी है वैसी करनी है. कुछ भी सिक्रेटिव नहीं है, गलत जगह फिर लोगों को डायरेक्शन नहीं देता. जो अंदर बाहर साफ है, जो कृति में साफ है, जो मन से स्वच्छ है, वही पारदर्शी है. और लीडर जब ये पारदर्शी होता है, लोग ज्यादा जुड़ते हैं उनसे. टू whom would you like to connect? A person who is manipulative, secretive, biased, or the one who is transparent? Biased, no? What do you say? Transparent. Isn't it? So लीडर में ये चौथा क्वालिटी होना चाहिए जिसको हम कहते हैं पारदर्शी. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रियदर्शी, जो प्लेजेंट पर्सनालिटी हो ना. कई बार ऐसे होता है कि लीडर बहुत अच्छा होता है, पर वो बोलने में हार्शनेस आ जाता है, बिहेवियर में हार्शनेस आता है. सो वो क्या होता है, फिर लोग टूटते हैं. सो वो पर्सनालिटी प्लेजेंट हो. बोलते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात. भाई सत्य बोलो, पर कैसे बोलो? सत्य प्रिय बोलो, जो सुनने में ठीक लगे. इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड, यू कैन कॉल हिम, भाई अंधे इधर आओ. ये भी सच है, पर सुनने में हार्श है, तो ये प्रियदर्शी नहीं हुआ. बट यही भी तो बोल सकते हैं, भाई मन की आंखों से देखने वाले इधर आ जाओ. ये सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? ये प्रियदर्शी हो गया. Yeah, if we many times we have seen in corporate world also people give feedback, but how one should give feedback without hurting other person's dignity? The moment we start hurting others' dignity, that person is cut off from us. So प्रियदर्शी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि जो कभी फीडबैक नहीं देता, फीडबैक देता है, क्रिटिसाइज जब जरूरत पड़े वो करेगा, बट विदाउट हर्टिंग देयर dignity.
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? या ये कोई भी आप लीड करो, कहीं पर भी लीड करो आप, हम में ये 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है. कैन यू रिपीट विथ मी, विच इज द फर्स्ट वन? बिल्कुल सुनाई नहीं दिया मुझे. सबका सम आवाज आएगा बाहर. समदर्शी, सत्यदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी और प्रियदर्शी. ये 5, लेकिन एक एक उंगली पे एक याद रखो, अब आसानी से याद रह जाएगा. Isn't it? And don't you want this kind of people around you? 3 people want. What about others? Everybody wants, yes or no? I want best surrounding. I want best people around me. But am I the best? चलो, let's begin today. सबसे पहले मान लेते मैं हूं अच्छा, तभी तो ना शुरुआत होगी. मानने से होगा. अभी कई बार ये सुनते हैं तो मन में आता है डाउट, ये सही में ऐसा कोई इंसान होगा क्या? आपको नहीं दिख रहा है आजू बाजू में? मिरर में देखना, तो आप में छुपा है वो मिरर में नहीं दिखा तो कहीं नहीं दिखेगा. हाँ, देखो अभी ठीक से बजाओ ताली, नहीं तो नहीं बजाओ. So these 5 qualities you remember. And जरूरी नहीं है कि हर पल हर क्षण हम ये रिफ्लेक्ट करें हमसे. कभी कभी होगा, कभी नहीं होगा, पर ज्यादातर समय हमसे ये रिफ्लेक्ट हो क्वालिटीज. ये यदि हम देखें, आई टेल यू, विल बी एबल टू क्रिएट डिवाइन सोसाइटी अराउंड अस. कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे इधर ऑफिस में सब ठीक है, बट देयर इज नो हार्मनी. इफ वन पर्सन सेज ईस्ट, अदर सेज साउथ. तो ये ऑब्वियस है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, एंड टू क्रिएट हार्मनी, रादर टू मेंटेन हार्मनी इन दिस डाइवर्सिटी इज कॉल्ड विजडम. कई बार ऐसे यहां वहां ट्रैवल करता हूं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बैक टू बैक, या मन में जो चाहता हूं वो होता नहीं है सामने से. देन आई रिमाइंड 2 things टू माई सेल्फ. नंबर 1, यू वांट टू नो, व्हेन आई रिमाइंड दिस 2 things टू माई सेल्फ, आई बिकम रियली रिलैक्स्ड. इज अ सीक्रेट. You want to know? It might work with you. Yeah? Number 1, कि ये दुनिया मैंने बनाई नहीं है, ये मेरा टेंशन नहीं है. आपने, are you the maker? I'm still in the search of maker. Are you the maker? Is this your tension? You can have good intention to serve others, but don't take tension. Is that clear? नंबर 1, ये दुनिया मैंने बनाई नहीं, पहला. और दूसरा एकदम ही सिंपल है, जो कि ये मैंने दुनिया बनाई नहीं है, तो ये मेरे टाइम टेबल पे चलने वाली. हा, डन. है कि नहीं? वरना ऐसे बोझा लेके घूमते हैं जैसे सब कुछ मुझे ही करना है कि नहीं? मैं जब यंगस्टर से भी जब ये सेशंस लेता हूं, उनको बोलता हूं, भाई एग्जाम के पहले भी जो आराम से रिलैक्स रहे वो सही मायने में स्टूडेंट है. कोई इवेंट के पहले भी जो रिलैक्स हो सकता है वो सही मायने में ऑर्गेनाइजर है. यस और नो? या सो ये बहुत ध्यान में रखना. 2 चीजें, मैंने ये दुनिया बनाई नहीं, ये मेरे टाइम टेबल पे नहीं चलेगी. बी रिलैक्स्ड, एंड देन वी कैन बिकम बॉस ऑफ आवर ओन लाइफ. आर यू द बॉस? Normally in corporate world, this word is very dangerous, no? Boss is calling, nobody happily goes there. No, boss is calling, क्या हो गया भाई? सब याद करते कुंडली, क्या क्या मैंने किया है, क्या बाकी. Isn't it? But if you really want to become boss, and when you call others, your subordinate should come to you happily, तो ये boss को पहले समझना पड़ेगा हमको. Boss माने क्या? Yeah, that's how I perceive from boss. Yeah, B stands for belongingness. O stands for ownership. S is for sensitivity. And next S is for sensibility. तो ये 4 गुण जो अपने अंदर रख के औरों को साथ लेके चलता है, वही तो बॉस है. Are you understanding this? Belongingness. Not only salary, I'm feeling belonging only with salary, or only with business, only with profit. It's not like that. With everything, every single thing, everything in my unit, every person in my unit, they belong to me.
Am I making sense to you or not? Sure? Yeah. But by the way, it's very dangerous also. You have to be very skillful. If you say everybody belongs to me, they will ask you credit card. Getting it? हाँ, वो बिल भी उनको ही भेज देना because they belong to you. So that's how it is. First is what? Belongingness. अपनापन. और अगर हम देखते हैं भारत में कुछ साल पहले, मुझे अभी भी याद है, मैं एकदम छोटा था, हम खेलते थे, किसी के भी घर जाके पानी मांग के पीते थे हम, उसमें शर्म नहीं आती थी. अब कुछ लोगों को ये अनुभव होगा यहाँ पर, नहीं, पानी मांगने में शर्म नहीं आती थी, किसी के घर बेवजह जाकर बैठ के गप्पे मारने में शर्म नहीं आती थी. आजकल पहले मैसेज भेजना पड़ता है, आर यू फ्री, मैं कम, यस और नो. अरे घर के दरवाजे तो बंद हो ही गए, दिल के भी बंद हो गए मेरे को लगता है कि नहीं. और हमारा भारत देश है, ये पूरा अपनापन का ही देश है. देखो ना, इतने कल्चर, इतने रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, इतने लैंग्वेजेस होते हुए भी ये एक देश है कि नहीं अभी तक. वरना इंडिया का, हिंदुस्तान का इथोपिया होने में समय नहीं लगता है कि नहीं. अपने आप में छोटा यूरोप है कि नहीं भारत, मुझे बताओ. बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वीजा नहीं लगता, इतना ही फर्क है कि नहीं. या यही तो है अपनापन है. अपना देश की शुरुआत ही अपनापन से, और अपनापन हमको किसी ने सिखाया नहीं है. यहाँ पर सिखाया क्या? नाउ सपोज इफ समबडी इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू और फंबल हो जाए, गिर जाए नीचे, तो आप क्या करोगे? हाँ, अभी मैं इम्बैलेंस हो गया, आप क्या करोगे? यहाँ पर हंसोगे ना, बैठ के गिर गया, क्या करेंगे? यू विल मेक एन सिंसियर अटेम्प्ट नो टू होल्ड मी, राइट? जो पीछे बैठे हैं वो शायद यहां तक पहुंचे नहीं, पर एक नेचुरली वो इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं, वो दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंगनेस, नथिंग एल्स. आई एम हियर फॉर अदर्स, एंड वॉट एवर टैलेंट्स वी हैव इट फॉर अदर्स. बाय द वे, आंखें है किसकी? देखते औरों को है ना, मिरर का वो टाइम छोड़ के, यस और नो. या सब कुछ तो औरों के लिए हमारा. ये कब पता चलेगा? जब वो बिलोंगिंगनेस हो, अपनापन हो औरों के साथ. So when we create this अपनापन ना in company, in our unit, देखना वो कभी टूटेगा नहीं परिवार. There are many volunteers work with me in Art of Living, but I never call them volunteer. I call them my extended family. Volunteer एक टैग लग गया, family या अपनापन हो गया. What do you say? Yes or no? और भारत ने ही तो पूरे देश को एक बड़ा सिद्धांत दिया है, ये सीख दी है, वसुधैव कुटुंबकम. हम ही तो बोलते हैं कि विश्व एक परिवार है, पर हर कोई परिवार में भी अपना अपना विश्व लेके बैठा है. अभी वो थोड़ा एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाए. वो क्यों हो रहा है? तनाव के वजह से, वो भी हम बाद में बात करेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट? बिलोंगिंगनेस, अपनापन. ये मेरा अपना है. एक कंपनी में ऐसे पूछा था, एक्चुअली ये बिलोंगिंगनेस से याद आया मुझे, कि सीईओ था, सीईओ को एक उसके फाइनेंशियल ऑफिसर ने पूछा, सीएफओ ने, कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन क्यों करें? इफ़ यू ग्रूम अवर एम्प्लॉयज़ दे विल बिकम एक्सपर्ट एंड दे विल लीव अस. तो वो सीईओ ने वो सीएफओ को पूछा, व्हाट इफ यू डोंट ट्रेन देम एंड दे डोंट गो? कि हमने ट्रेन किया ही नहीं और वो गए नहीं तो. सो वो अपनापन होना चाहिए कि मैं जिसको ग्रूम कर रहा हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट्स को भी, वो कल को मुझे छोड़ गए तो. ये फियर से नहीं चलता. कोई भी कंपनी, कोई भी यूनिट नहीं चलेगा. वी आर हियर टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, एट द सेम टाइम अपग्रेड अदर्स. आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? श्योर? सो इसीलिए बोलते हैं ना, वी नीड टू प्ले टीटी विथ आवर एम्प्लॉयज. फर्स्ट इज व्हाट? ट्रेनिंग. Train them thoroughly, groom them, grill them so that they can excel in skills. And second, कि ऐसे ट्रेन करो उनको कि वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं. और दूसरा टी आता है ट्रीट. ऐसे ट्रीट करो उनको कि वो कभी मन नहीं हो उनका जाने का. ये दो टी हमको संभालना है लाइफ में, ट्रेन एंड ट्रीट. ट्रीट विथ लव, विथ केयर, विथ बिलोंगिंगनेस एंड ओनरशिप. सेकेंड, बॉस का ओ क्या है? ओनरशिप. Normally this happens, no? Not only in corporate world, everywhere. गलती हो गई, what do we do immediately? Disown. I didn't do it. He did it. Other department has done it. ये होता है कि नहीं होता है? And then blame game happens.
And where there is blame, that harmony cannot be maintained in that unit. सो वो क्या होना चाहिए? ओनरशिप. चलो भाई गलती हो गई किसी से, हमारा अपना है, हम साथ में मिलके चलो बढ़ते हैं, इसको ठीक करते हैं. फिर अगर हम सही है, सामने वाला गलत है, गलत को गलत बोल के हमने अपना सही होने का क्या बड़ा सिद्ध किया? फिर I personally believe the real power is not dominating and dictating others. The real power is when we take ownership of others' mistakes and weaknesses and empower them in life. That is called real ownership. Yes or no? Yeah. और जिसके लिए हम ओनरशिप लेके बैठे भी है, देखो ना हमारा क्या है इस दुनिया में, अगर हम थोड़ा विशाल दृष्टिकोण से देखें तो क्या है बताओ? हाँ, कुछ भी नहीं, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, सिर्फ थोड़ा शरीर बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं, है कि नहीं? Yes or no? We are just users of this world, but the moment we become owner, we want to become owner of these things of this world, then we lose everything. ओनरशिप फिर भी ठीक है, मैं बोलता हूँ कुछ लोग तो पजेस करने जाते हैं. We cannot possess anything here. This we cannot possess our breath also. This is going to go one day. है कि नहीं? Sure? हाँ? So second is what? Ownership. जो है गलती सही अच्छा बुरा, चलो मैं ले लेता हूँ उसको, हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज सेंसिटिव. सेंसिटिव माने क्या? संवेदनशीलता. सामने वाले की परख समझ, उसकी जरूरत क्या है ये जानना. सेंसिटिविटी कम्स फ्रॉम हियर, हार्ट. बट आई टेल यू, समटाइम्स मेनी पीपल दे आर जस्ट सेंसिटिव, रादर ओवर सेंसिटिव. दे लैक दिस सेंसिबिलिटी. सो सेंसिटिव लोगों के साथ प्रॉब्लम वही है, दे आर वेरी मूडी, वेरी इमोशनल. ऑब्जर्व किया आपने ये बात? मूड स्विंग्स वेरी ऑफन, है कि नहीं? और सेंसिटिव लोगों के साथ गड़बड़ ये होता है कि intelligent people, rather crooked people, take undue advantage of them and they become victim. Yes? और कुछ लोग सिर्फ सेंसिबल है, दिमाग में है, दिल से ऑपरेट नहीं करते वो, तो वहां क्या होता है? they become crooked and start taking undue advantage of others. So इसीलिए दोनों का मिश्रण होना चाहिए, दिल और दिमाग. Then we can say I am a boss in a real sense, because everything and everybody, they belong to me. Okay, not only profit. Yeah, and then ownership. I own their weaknesses also, I own their strengths also. And then I am sensible and sensitive to understand their need and applying skills also. So ये सही मायने में क्या हो गया? क्या हो गया? Boss. So are you the boss? Sure? नहीं है तो कुछ नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा. और है, then you can excel on that and you can groom others to become a boss. But don't be bossy all the time. हम सभी चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये सेंसिटिविटी रहे, ओनरशिप रहे, बिलोंगिंगनेस रहे, पर कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? ये हो नहीं रहा है. हमने जो सुना है, हम जो कहते हैं और कर रहे, उसमें क्या आ गया? अंतर आ रहा है फिर. एंड दैट इज व्हाई पीपल दे रन अवे फ्रॉम अस. भाई ये बोलता कुछ और पर है कुछ और. होता है कि नहीं होता है? डू यू डू दिस इंटेंशनली? डू यू गेट एंग्री इंटेंशनली? वापी, आई डोंट नो, यू हैव टू आंसर. आप इंटेंशनली गुस्सा होते हो क्या? श्योर? डिप्रेस्ड? हाँ आज ठीक है, मैं एवरी सैटरडे आई विल बी डिप्रेस्ड. ऐसा होता है? नहीं होता. सो कोई भी दुखी इंटेंशनली नहीं होना चाहता, गुस्सा इंटेंशनली नहीं होना चाहता, पर वो हो जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. हैव यू हर्ड दिस वर्ड कॉल्ड स्ट्रेस? कई लोग के चेहरे पर ऐसे हुए, अरे क्या सुना, क्या हम जी रहे उसी में. नहीं, वो तो कभी कभी मैं जोकिंगली बोलता हूँ, लोग ऐसे पूछते हैं कि सर अरे क्या है आजकल दिखता नहीं, कहाँ होता है स्ट्रेस में? Yeah. So what is stress? We need to understand this first. Stress means what? Where demand is more than my capacity. That is called stress. बहुत चीजें करनी है, too much to do in shorter time with lesser energy, then I get stress.
And I tell you, demands of life are never ending. Never ending. So कम कहाँ पढ़ रहे हैं हम? Ability में. Yes or no? So वो ability को कैसे बढ़ाया है? तो बोलते हैं भाई शारीरिक ability कैसे बढ़ाना है? एक्सरसाइज, प्राणायाम, जॉगिंग, स्विमिंग करना चाहिए, कुछ आसना करना चाहिए हमको, और प्रॉपरली खाना चाहिए. डीजल के गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? ठीक से नहीं चले, खराब हो जाएगा ना. यस और नो? कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, ठीक से खाना नहीं खाया तो वो परफॉर्मेंस देगी ही नहीं और देती नहीं. क्लियर है? यस. दूसरा स्ट्रेस हमको कहाँ आता है? माइंड में. And what is the sign that we are stressed out in our mental level? Our mind is not stable in the present. It's constantly oscillating between past and future. अब देखो दिन में कितना समय हम व्यर्थ गवाते हैं पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचने से. जितने थॉट आएंगे उससे जुड़ी हुई इमोशंस. नो? इफ आई से लोचो, क्या बोलते हैं सूरत में बनता है वो? है लोचो बोला, अभी उसके साथ जुड़ी इमोशंस आ गए कि नहीं बाहर? भवहारो होता है कि नहीं होता? तो जितने थॉट्स आ रहे दिन में, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स, वी हैव नो आइडिया. एंड अलोंग विद एवरी थॉट व्हाट कम्स अप? इमोशंस. और उतने इमोशनल टर्बुलेंस. दैट इज व्हाई वी आर ड्रेन्ड इन लाइफ. दूसरा मेंटल स्ट्रेस. तीसरा स्ट्रेस आता है हमको इंटेलेक्ट के थ्रू. इंटेलेक्ट में स्ट्रेस आ गया, उसका साइन क्या है? वी डाउट विच इज गुड एंड वी ट्रस्ट इजीली विच इज बैड. होता है कि नहीं होता है? यू आर नाइस ड्रेस्ड अप, यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, समबडी कम्स एंड टेल्स यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल. हम क्या बोलते हैं? भाई इतनी तारीफ कर रहा है, दाल में कुछ, या दाल ही. अरे कितने अनुभवी लोग हैं देखो यहाँ, है कि नहीं? या बट कोई आके बोले यू आर एन इडियट, यू आर अ पैथेटिक पर्सन, यू आर अ डोंकी. इमीडिएटली वी बबल अप एंड वी से एम आई डोंकी? यू आर ऑल्सो डोंकी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्सो? अच्छा बोला डाउट लिया, रियली? बुरा बोला तो मान लिया मैं हूं. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज स्ट्रेस एट द इंटेलेक्ट लेवल. अपने क्षमता पर डाउट करते हैं हम. मुझसे ये होगा क्या? ये डाउट आके बैठ जाते हैं एक जगह. थोड़ा परेशानी, प्रॉब्लम्स नहीं आए बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, वी गेट कंप्लीटली बैठ जाते हैं, एक धरे के धरे हो जाते हैं, क्योंकि खुद के क्षमता पर संशय है. मुझसे ये क्यों नहीं हो पाएगा, ये कभी आता नहीं है डाउट मन में. सुन रहे हो ना मेरी बात? यस और नो? ये इंटेलेक्ट के थ्रू डाउट. और फिर नेक्स्ट कम्स इन मेमोरी. See how many memory, how much GB and TB's memory we have no idea. Infinite storage of memory. पर हम क्या याद रखते हैं, हमारा आगे का लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करता है. और जब स्ट्रेस आता है, मेमोरी से कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो? अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं, बुरी चीजें पकड़ के बैठ जाते हैं. Do you see what I'm saying? We tend to forget 10 compliments. But we hold on to one criticism. उसने मुझे ऐसे बोला. And that is more than enough. Yes or no? कहीं पिकनिक में गए, शायद अभी न्यू ईयर के लिए आप गए होंगे पिकनिक कहीं. सो पिकनिक के लिए जाते हैं, होल डे वी एंजॉय, एंड व्हाइल कमिंग बैक वो गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया. नेक्स्ट डे somebody ask you, how was your picnic? What do we say? पूछ मत यार, सत्यानाश हो गया है. बोलते कि नहीं बोलते? 80% we enjoy it, we tend to forget it, but 20% we hold on to it and stretch it and make it 200%. And then we say, pardon my language, but then we say, my life sucks. I'm miserable. Yes or no? किसने बनाया? हमने, क्योंकि अनप्लेजेंट इवेंट को हमने ही पकड़ के रखा है. अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? अभी आप जब यहां से जाओगे ना, जितने भी बजे, मैं छोड़ूंगा आपको, काम है वो. जिसके तनाव कम है वो अच्छा ही लेके जाएगा. जिसके तनाव है अभी भी अंदर, वो कुछ गलत ही याद रख के जाएगा, है कि नहीं? पूरा कपड़ा अच्छा क्लीन है, वहां नजर नहीं जाती है. एक हाथ थोड़ा सा दाग होगा ना, बराबर वही नजर जाती है. सीट अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है.
एक हाथ कहीं छोटा होल होता है ना, देखो उंगली वहीं जाती है, और वो होल को बड़ा करने का काम भी हम ही करते हैं ना. Why this is happening? It is only and only because of stress, तनाव. और आगे का तनाव आता है, that is in ego. Ego is what? When we are not gelling up with others, there is no belongingness, there is no naturalness. अपने आप को औरों से ऊपर समझना या फिर अपने आप को औरों से कम समझना, but we are not on the same frequency with others. You know, this world is all about action, reaction and transaction. But if you want real relaxation, you have to transcend these levels of stress. And बोलते हैं ना कि भाई अच्छा good health का sign क्या है? Do you want to know? Many times we ask each other, no, how are you? Don't we ask? Actually, we don't wait for the answer also. पर ये पूछते हैं कैसे है भाई, पर कैसे है का लिटरल मीनिंग क्या होता है? When disease free body, long and deep breaths, stress free mind, doubt free intellect, hindrance free memory, ego which encompasses everybody, and the one who rejoices and reposes in oneself is the sign of good health. क्या? शांत सुदृढ़ शरीर, स्वस्थ शरीर, लंबी गहरी सांस, तनाव रहित मन, संशय रहित बुद्धि, असुखद घटना रहित चित्त स्मृति, अहम जो सबको संभाले अपने अंदर और जो स्वयं में मस्त है और मस्ती में है, यही तो लक्षण है अच्छे स्वास्थ्य का. और ये हम सब, ये सब हमारा बर्थ राइट है बाय द वे. यस और नो? अभी तो अंग्रेज भी नहीं है हमको रोकने वाले. वी आर इंडिपेंडेंट बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. Yes or no? External high, isn't it? But today I want you to experience the internal high. We have kept our eyes open and have seen the outer world. But today we will keep our eyes closed for a while and we'll see the internal world, which is more beautiful and powerful than outer world. Are you ready for the journey? Sure. In short, I will conduct a guided meditation now. पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइंड को रेस्ट करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ मशीन को भी रेस्ट दे देना. यू हैव द मशीन विथ यू. अभी तो कोई वो तारका सुर, ये सुर असुर नहीं है, वो एक ही है मोबाइल सुर. उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा हमको, है कि नहीं? तो वो मशीन को थोड़ा साइलेंट कर देना, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट आई वांट टू गिव यू. ओके, सो कीप योर बिलोंगिंग्स असाइड. आराम से बैठ जाए. अच्छा, दोनों आंखें बंद. ओके ना, अगर आंखें बंद है तो एक बार खोल देना. हाँ, देख लो जो भी देखना है एक बार. हु इज योर नेम? डजंट मैटर इफ इट इज आर्टिफिशियल, बट कीप अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in once again, and as you breathe out, relax more and more. Become aware of your surrounding. Become aware of this hall.
take your attention to the sound from the surrounding. The sound of music, the sound of clicks, accept all the sound from the surrounding. Become one with them. Breathe in and breathe out. Now become aware of your body. Place the entire weight of the body on the chair where you are sitting. Our body is a precious gift to us by nature. Honor your body. Let them come. Become one with the thoughts.
are joy. Become aware of your thoughts, if any. How was it? Was it good? Yes? So how many of you are feeling lighter now? हल्का लग रहा है थोड़ा पहले से. I guarantee you physical weight बिल्कुल कम नहीं हुआ है. बट फिर भी हल्का लग रहा है. कितने लोगों के थॉट्स गए या फिर रिड्यूस हो गए? विचार बहुत कम हो गए. You know, this process is called meditation. First of all, are you back? Have you landed? Okay. This process is called meditation. A mind without agitation is called meditation. A mind without frustration is called meditation. A mind without any anticipation is called meditation. In fact, mind remains no mind. That is called meditation. It's so beautiful. See, we meditated almost for 16 minutes, 16, 17 minutes. Nice, no? What do you say? Yeah? आँख बंद करके थोड़ी देर बैठे ना तो फिर जीवन में आँख खुल जाती है और विजन आ जाता है क्या करना है आगे, है कि नहीं? तो ऐसे बोलते हैं 15 to 20 minutes. Research it has done on meditation. 15 to 20 minutes of meditation gives us rest, rather energy of 6 hours sleep. 6 घंटे के बराबरी का हमको ऊर्जा देती है वो. पर ये नींद के लिए अल्टरनेटिव नहीं है. So meditate. You know, there were many freedom fighters in the world, many. But why Mahatma Gandhi has given importance? He used to meditate. Yeah? So meditation has that power. We can consolidate our energy and put it in a right channel. Yeah? So I really recommend you meditate at least 15 minutes a day. बहुत फर्क पड़ेगा हमको. सबसे पहली बात, we get the ability to take decisions on our own. Our mind is clear. Yeah, so we do, with that clear mind, we do more work in lesser time. Interpersonal relationship improves because of meditation. You know why? Because meditation, what it does, it
Life is all about observation, expression and perception. And what meditation does, when we do meditation, it makes us our observation keen. Keen observation, refined perception and proper expression. इन तीन में से एक भी चला गया तो life will be imbalanced. Do you agree with me? Yes, there people. So करना जरूर आप meditation थोड़ा बहुत. See, it's very important, no, when car is parked at the wrong place to remove it ASAP. So where our mind is parked, we should also know that and remove our mind from that place and bring it to where it should be. Yes or no? Yeah, it's very, very important. Huh? So before I stop, you have any question? You can ask if you have any question. If I know, I will let you know. Yes, please. See, don't make it a habit. If someday you can do it, before sleeping you meditate, it's okay. Once in a blue moon, it is okay. But don't make it a habit, because sometimes this happens when you meditate, you get energetic. Then, you might have sleepless nights also. So it's better, no? If you want that energy throughout the day, when you get up early in the morning, then you should do. Yeah, please, sir. Okay. Very nice, very nice. So see, that's why you have that smile, so lovely smile you have on your face. Yes. Hello. Yeah. Jai Gurudev. The only thing is that I feel I am not being able to meditate properly, or is that my feeling that it is not possible for me? Can you give me a solution for it? What you cannot manage? Meditate. Meditate. Meditation, Okay, yeah. meditate. Okay. Okay, I'll answer. See, before meditate, to sit still, yeah, we need to remove little bit restlessness which we have from our body. Restlessness and little bit of lethargy. So what you can do, you can jog a little, you can do Surya Namaskar, and then you meditate. It will be effortless. Have you experienced Sudarshan Kriya? Yes. Yeah. Have you experienced Sahaj Samadhi Dhyan? Not yet. No? Okay, I would recommend that. But little bit of exercise, remove that restlessness and little bit lethargy from the body, and the body is still. And that makes you eligible to make your mind calm and relaxed. Welcome. Anything, anybody? Yeah. Sir, difference between leadership and bossism. Difference between? Leadership and boss. I won't give your answer. This is bossism. Getting it? नॉर्मली क्या होता है, Yeah. प्रॉब्लम ये होता है कि मैं मेरी कंपनी में बॉस हूँ, हाँ जी. लेकिन मेरी सोसाइटी में मैं बॉस नहीं हूँ, मेरा कोई लीडर है उधर, या प्रेसिडेंट है, कोई भी है. एसोसिएशन में मैं मेंबर हूँ, लेकिन मैं बॉस नहीं हूँ. यहाँ पर ये प्रकाश बद्रा है, बराबर. तो उसमें होता क्या है, जब कोई भी लीडर है, मेरे समाज में जो है, हमारा प्रमुख है, जो भी है, वो व्यक्ति विशेष, मुझे इंग्लिश नहीं उसको मालूम, व्यक्ति विशेष हो जाता है, तब हमारा ईगो हर्ट होता है. तब उस वक्त क्या कर सकते हैं हम लोग? Okay. I got your question. See, हम कई बार our ego gets hurt. Yes or no? I tell you, only ego gets hurt. Nothing else. Yeah. But मैं बोलता हूँ कि कोई हमको, यदि हम बोलते हैं ना, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति ति कुबुद्धि रेशा. I'll explain. अगर हम चाहते हैं तो ना मुझे कोई सुख दे सकता है, ना मुझे कोई दुख दे सकता है. अगर मैं ये जानता हूं कि किसी और की वजह से मुझे आ रहा है, तो ये मेरा अज्ञान है. Understanding is, if somebody calls you donkey, we don't become a donkey, isn't it? We don't need to feel bad. And even if we are a donkey and somebody calls donkey, फिर भी बुरा लगने का कोई कारण नहीं. हाँ? और ये होता है कई बार व्यवहार में, एक दूसरे को ठेस तो पहुंचती है, पर हम कितना जल्दी उसको फ्लश आउट करते हैं, उसके ऊपर हमारे ये रिलेशनशिप टिकते हैं. एंड एवरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन these three things: love, respect and trust, और you can say comfort also. इनमें से एक भी पिलर शैटर होता है, हमारी रिलेशनशिप कोलैप्स होती है, whether it is professional, social और personal.
है कि नहीं? हम सब डेली गार्बेज निकालते हैं कि नहीं? रोज नहीं? माय गॉड। हाउएवर वी हैव ईटन, नो, कितना भी प्यारा खाना क्यों ना खाया हो हमने, isn't it, पर वो निकालना ही पड़ता है कि नहीं? You know, to remove physical garbage, maker has left us choiceless. But to remove mental garbage, we have choice. That's why we hold on to it. So जितना जल्दी किसी का अपमान, असुखद घटना हम फ्लश आउट करते हैं, उतना हम मस्त रहना शुरू होते हैं. और ये ध्यान ऐसी प्रक्रिया है, अनवांटेड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस लाइफ से फ्लश आउट हो जाते हैं. And what remains on face is, now you know it. What is truth? Actually, different people have their own truth. So what final truth we will have to decide. Yeah, even if I tell you something, you will say it is my perception of truth. Ah, So what is truth? That we need to figure it out. that's what I. Everybody, that is the How? question, is journey also and destination also. Getting it? If somebody gives you the ready-made answer for this question, don't take it. We need to explore, we need to, हमको खोजना पड़ेगा वो ट्रुथ क्या है. और यही तो अध्यात्म है. ये क्या है, ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, ये साइंस हो गया. पर मैं कौन हूँ, ये सत्य क्या है, ये अध्यात्म हो गया. साइंस में पहले प्रूफ आता है, फिर बिलीफ आती है. अध्यात्म में पहले बिलीफ होती है, प्रूफ फॉलो हो जाता है. हाँ, सो वुड यू लाइक दैट अदर्स आर चीविंग योर फूड फॉर यू? दूसरा खाना आपको चबा के दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं. तो ये प्रश्न का उत्तर आप औरों से नहीं लेना, क्योंकि उनके अनुभव के अनुसार ये बताएंगे. हम आपको खोजना है इसको. I always say we have got this human life not just to eat, sleep, have sex, have fun. इसके लिए तो नहीं, इसके परे भी तो कुछ होगा ना मायने हमारे जीवन का. वो क्या है, ये हमको हर एक को खोजना है इसको. And with that maturity, with knowledge, wisdom, we will get to the answer soon. Yeah? Yes sir, आपको पूछना था. हाँ जी. कहाँ पे जाता है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है. है कि नहीं? फिर गाना पड़ता है, मन रे तू काहे ना धीर धरे. है कि नहीं? हाँ, मैं बोलता हूँ. मेडिटेशन माने पता है क्या? जिसको हम बोलते हैं ध्यान. धी माने बुद्धि, न माने नहीं. ऐसी प्रक्रिया जिसमें मन तो है पर बुद्धि नहीं है. जैसे कई लोगों की धारणा होती है, ध्यान माने विचार नहीं आना चाहिए, और वो लेके बैठे विचार के साथ, विचार नहीं आना चाहिए, विचार नहीं. ये तो सबसे बड़ा विचार परेशान अब हो गया आप. है कि नहीं? तो क्या भाई, विचार आ गया, अभी दाल ढोकली, क्या करे, अभी मैं जाके इधर खाऊंगा, नहीं उधर का अच्छा है, फिर ये बनाएंगे. ये क्या हो गया? बुद्धि आ गई इसमें. तो ये जैसे ही विचार कोई आया, जाती हुई सांस के साथ छोड़ देना आपको. जाती हुई सांस मतलब ब्रेथ के साथ. हाँ, ठीक है ना? तो ये डीलिंक थॉट्स इज मेडिटेशन. लिंक्ड थॉट्स इज नथिंग बट स्कीमिंग एंड प्लानिंग. कई बार लोग अपने आप को फंसा लेते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, पर दुनिया भर की चीजें सोचते बैठते हैं, फिर वो ध्यान नहीं होता. हाँ, और कोई भी काम मैं ऐसे मानता हूं, ध्यान में और ध्यान से करेंगे तो सक्सेस तो मिलता ही है जीवन में. balcony people, yeah, you are active now. Yeah, what is the question? Yeah, so don't be rude, be diplomatic. You can be diplomatic, but at the same time truthful also. Are you understanding this? Yeah, see, do not impose your righteousness on others. कई बार मैंने देखा है, listen, I get up at 6 o'clock, better you get up. I followed this thing in my life, better you follow. See, you followed, it's a great thing, but it is not advisable to impose your righteousness on others. You know, I always say there are 3 kind of people around us. One is basil. Have you seen basil? तुलसी. उसका बीज बोया, थोड़े समय में स्प्राउट हो जाता है. कुछ लोग होते हैं जो आम की तरह होते हैं, अभी बीज बोया और
बहुत सालों के बाद फल लगता है। कुछ लोग होते हैं वो जैक फ्रूट की तरह होते हैं। जैक फ्रूट पता है आपको क्या बोलते हैं उसको? कटहल, फणस है कि नहीं? फणस, जैक फ्रूट, कि भाई अभी बीज बोया, हमारा अगला जनरेशन खाएगा। हाँ, सो इफ यू आर राइचियस, yeah, if you are transparent, don't impose your transparency on others. Give them time to grow and understand things. Yes or no? Yeah? Okay. Yes, please, sir. Sorry? Okay, मैं ये देखो, it's not the right platform to comment on political leaders from here. I am not politically avoiding the question, by the way. But मेरा ऐसा मानना है, या हम ही सभी ये मानते होंगे कि जहाँ शासक और सुधारक साथ में आता है ना, तभी शांतिपूर्ण क्रांति होती है। होता है कि नहीं होता है? हमने कई बार, हमारे ये भारत में है प्रथा पहले से, हर कई सालों से हम पीढ़ियों से देखते हैं, राजा के बाजू में गुरु ही बैठता है कि नहीं? और वो जब होने लगता है तब अंदरूनी शांति भी होती है और बाह्य प्रगति भी होती है। इसलिए सिर्फ शासक रहेगा तो सिर्फ प्लानिंग स्कीमिंग होगा, इंटरनल ग्रोथ, हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगा। आज हमारा भारत हैप्पीनेस सर्वे में कितना पीछे है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे आगे है वो। दो वी नो द इंटरनल थिंग्स, बट एनीवे, तो क्या चाहिए? शासक के साथ सुधारक चाहिए, और सिर्फ सुधारक रह के भी नहीं होता, उसको अमल में करने के लिए क्या चाहिए? शासक भी चाहिए साथ में। तो शासक और सुधारक दोनों आएंगे, इस तरह से तो होगा। जैसे कि कॉमर्स एंड स्पिरिचुअलिटी व्हेन दे कम टुगेदर, बोलते हैं ना, एथिक्स इन बिजनेस, CSR इन बिजनेस, सेक्युलरिज्म इन रिलीजन, ये जब आए ना तब ये समाज में थोड़ा शांति आएगा फिर। सर लाइफ अच्छा, वहां से आवाज। सर लाइफ में हैप्पीनेस आती है और तुरंत चली जाती है, सैडनेस आती नहीं है? जाती। हैप्पीनेस, लाइफ में हैप्पीनेस आती है हाँ। और तुरंत चली जाती है, सैडनेस नहीं जाती। सैडनेस नहीं जाती, वो कैसे दूर अभी करें? तो आप मुस्कुरा रहे हो, अभी तो बोला। है कि नहीं? यस सर। तो अभी क्या किया आपने जो मुस्कुरा रहे हो? हैप्पीनेस। बस तो वैसे ही रहो, ये कोई बाजार में नहीं मिलने वाला आपको। बाय द वे, आर यू मैरिड? सिंगल। अभी तो खुश रहे भाई। बाद में ये प्रश्न भी नहीं उठेगा मन में। सर नेगेटिव थॉट्स को कैसे वो चेंज करें सर? कुछ मत Negative करो, thoughts को। जितना आप तड़पोगे मुझे नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, उतना वो ज्यादा सताएंगे। सोने से पहले किसी के साथ झगड़ा करके सोते हैं देखो, और बोलते कि कुछ भी हो इसके बारे में सोचेंगे नहीं। सबसे ज्यादा क्या याद आता है? वही चीज मैं आपको बोलता ध्यान में कि कुछ भी सोचो पर बंदर के बारे में नहीं सोचो। सभी बंदर दिखते हैं, अलग अलग कलर के, साइज के, शेप के, पर द मोमेंट व्हेन आई सेड अलाउ योर थॉट्स, डू नॉट रेजिस्ट एनी थॉट, कोई थॉट ने हमको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, आने देना उनको। जैसे वो आते हैं, सागर में लहर उठती है और बैठती है, वैसे वो चले जाएंगे, बट डोंट होल्ड ऑन टू इट। जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं, वो भी गुजर जाएंगे। क्लियर है? हेलो, यहाँ पे कोई हाँ, किसी को? हाँ जी सर। हाँ, अपने मेडिटेशन में एक प्रॉब्लम यही होती है मुझे तो कि मेडिटेशन होते होते नींद आ जाती है। वो कैसे अवॉइड करूँ मैं? कि मेडिटेशन और नींद में क्या फ़र्क होता है? वो नींद में भी थॉटलेस हो जाते, बाद में नींद आती है, बाद में सपना आते, बात अलग है। अभी इधर भी थोड़ी नींद आ गई थी, एक सपना भी आ गया था। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी थ्रू आउट द मेडिटेशन? नो नो नो, इन बिटवीन थोड़ी नींद आ गई, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, शुरुआत ध्यान से हो ना, बाद में जो आपके शरीर के लिए, मन के लिए, इमोशंस के लिए जो जरूरी है वो अपने आप होगा। बोलते हैं ना, व्हेन वी ड्रॉप द बॉडी इट इज कॉल्ड मेडिटेशन, व्हेन बॉडी ड्रॉप्स अस दैट इज कॉल्ड डेथ। एंड एनीवेज बॉडी इज गोइंग टू ड्रॉप अस वन डे, बिफोर वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेटिंग, ड्रॉपिंग द बॉडी एवरी डे। हाँ, तो वो ध्यान के बीच बीच में थोड़ा नींद है, कोई बात। अभी आपको मस्त लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना? देखो मुस्कुराहट है चेहरे पर, बस तो फिर हो गया ध्यान। हाँ, कभी कभी ध्यान में आवाज भी आएगी, चलेगा, कोई बात नहीं। एंड रिजल्ट हैज टू बी गुड। बोलते हैं ना, एंड हैज टू बी गुड। इफ इट इज नॉट गुड देन वेट, इट इज नॉट द एंड। ओके, सम मोर क्वेश्चंस, 2-3 Yes, sir. Yeah.
या सर एक्चुअली सोते टाइम तो अच्छे से नींद आती है, बट सपने बहुत आते हैं, मतलब आते ही रहते हैं। होता है, बस। ये उम्र में होता है ऐसे ना- थोड़ा बहुत। नहीं सर, माय एज इज मतलब No, that's ज़्यादा okay. है। When I say you are old, that happens. You know, सपने वो नहीं है जो नींद में देखा करते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा ले जाते हैं। तो वैसे सपने देखना शुरू करो फिर। Getting it? And I tell you, it is written in our scriptures. Ignorant are those who see dream as a reality, but the wise ones see reality as also a dream. अगर सपने बहुत आते हैं, आप देखना इसके कई रीजन होंगे। घर में व्हाइट लाइट होगी, व्हाइट लाइट, ये येलो लाइट नहीं होती, पता है पहले के घर हमारे येलो लाइट होते थे। व्हाइट लाइट से मेलाटोनिन सिक्रेट नहीं होता ब्रेन से और नींद नहीं आती। ब्रेन गेट्स द मैसेज कि इट्स अ डे लाइट और हम सोने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते फिर। ये दूसरा आप गैजेट पे होते होंगे सोने से पहले, कई लोग यदि देखना खाना खाने के 1 घंटे के बाद तो सोना नहीं चाहिए, मतलब 1 घंटे के पहले तक, 1 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। और वो 1 घंटे में वो असुर हाथ में लेके बैठते हैं ना, तो गड़बड़ हो गया फिर। सही बात है कि नहीं, बताओ। या वो कहीं पर मैंने जोक भी पढ़ा है दैट व्हाट्सएप इज लाइक अ डायपर, एवरी 15 मिनट यू हैव टू चेक आया कि नहीं। सो बार बार आप फंक्शन में भी जाओ, यू आर फीलिंग अनईजी, awkward, हाउ टू अवॉइड दिस अनईजीनेस, पीपल स्टार्ट लुकिंग एट फोन, देयर इज नथिंग ऑन द स्क्रीन बाय द वे, बराबर है ना। सो आप मोबाइल अवॉइड करो सोने से पहले, तो साउंड स्लीप आएगा। और सोने से पहले थोड़ा ओम शांति शांति कुछ तो चैंट करके सोना, ठीक है। हाँ, जाप पहले करे, फिर ध्यान से अपने आप चले जाए उसमें, वो ठीक है। इनिशियली जाप कर सकते हैं, और जाप करते करते यदि ध्यान लग गया तो हो गया। फिर नहीं कर सकते ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ऐसे भी कई ध्यान है जहां पर आप मंत्रों के द्वारा ही ध्यान में जाते हैं, वो उसका जाप करते करते, तो आपके लिए वो फलदायी है, आप वो कीजिए, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन। How to bring harmony at workplace? How to bring harmony at workplace? Last 45 minutes what I have spoken is it's like in vain. That way only. ठीक है ना। सबसे पहले आप अपने साथ हार्मनी में हो कि नहीं हो, है। See, when we love ourselves, when we are in harmony with our own self, we become eligible to create harmony around us. Clear है? Yes? It is as simple as that. And I still recommend that I Excel I Lead आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, उसमें ये सब इश्यूज और डिटेल्ड में कैटर करते हैं, एड्रेस करते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कोई चीज का नहीं है ध्यान, माने कोई चीज है ही नहीं। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। नथिंग इज मेडिटेशन, and that in nothing lies everything. After this gentleman, हाँ, मुझे प्लीज़ एक आंसर चाहिए। हाँ जी। मैं एक मेरे सामने नेगेटिव पर्सन है, मैं उनको पॉजिटिव करना चाहता हूँ। बार बार नई नई ट्रिक 100 टाइम्स मैंने किया, लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं पॉजिटिवली ट्राई कर रहा हूँ, इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात, आप खुद शांत हो जाइए। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आप खुद शांत हो जाइए। वो व्यक्ति वैसा है, आप ये मान लीजिए। आपका मन शांत हो गया? हो गया? यस और नो? अभी वो व्यक्ति वैसे ही है, ये सोच के आप शांत हो सकते हो कि नहीं? देखो, कितने आए कितने गए, न कोई तरा न कोई तारा, है कि नहीं? मैं तुझे बदल के दिखाऊंगा, ये कभी हुआ है क्या आज तक? दूसरों का व्यवहार हमारे हाथ में है? सच सच बताओ। हाँ, नहीं है, पर हमारा उतना हम देखे काफी है। हर कोई बैठा हुआ व्यक्ति ना यहाँ से टेक अवे कुछ लेना चाहता है, ये लेके जाओ आप। सुबह आँख खुलने के बाद रात को बंद होने तक जो भी व्यक्ति मेरे सानिध्य में आए, दे शुड गो विद दैट अपलिफ्टमेंट, हैप्पी,
सीरीन होके वापस जाए। इतना हम कर सकते हैं क्या? इतनी सेवा काफी है। हाँ जी, अरे उनको सेशन में लाते आप हो जाएगा धीरे, बोलते ना धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। उनकी ऋतु आएगी, वो मैच्योरिटी से समझ जाएंगे। आप बस वो बीज डालने का काम करो आप। हाँ, पर आपका स्माइल नहीं खोना। हाँ, वो नहीं खोना किसी भी कीमत पर। यस, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बालकनी। बिल्कुल सही। Commitment, is about likes and dislikes. Commitment is about joy, pain and pleasure. वो हमको रखना पड़ेगा। Commitment and passion, they should go hand in hand. Commitment कैसे होता है? It's like a straight line. Passion varies. For example, if you like to play a sport like badminton, खेलना अच्छा लगता है. Anybody plays their badminton? You play badminton, right? So badminton is your passion? Yes or no? So you will get up, but to practice badminton, you require commitment. Fitness is your passion, but to be fit, you require commitment. So जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसमें पैशनेट तो होते ही है, पर साथ में विटामिन सी भी बहुत जरूरी है, कमिटमेंट। और वो कैसे बढ़ाना है? बोलते हैं कि सबसे बड़ा आसान तरीका है कमिटमेंट बढ़ाने का, मन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि निग्रह सबसे बड़ा है। जस्ट थिंक नो, आपको प्यास लगती है, मन में ये थॉट आया, आप उठ के जाते हो, पानी पी के वापस बैठते हो। हु इज पावरफुल, योर बॉडी और अ थॉट? एक थॉट जिसका कोई वजन नहीं, उसने 50, 60, 70 किलो का शरीर उठाया, वाटर स्टेशन के पास जाके पानी पी के बिठा दिया आपको। सो हु इज पावरफुल? थॉट। एंड वेयर थॉट अराइजेस? इन माइंड। इसीलिए बोलते मनैव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। वो मन को जब तक हम बलशाली नहीं करते, कोई कमिटमेंट पैशन नहीं टिकता जीवन में। और मन को सुदृढ़ निग्रही करने का आसान तरीका क्या है? मेडिटेशन, ज्ञान। वो जब हम करेंगे तब वो और स्ट्रांग होते जाएगा। Am I making sense to you? Yes? That is it. Yeah. So I invite Pinkal, and I had really nice time with you. I hope you enjoyed. All that we have been through this evening can be experienced in a more sustained way through happiness program. So I would like to welcome Alpa Kotaria ma'am to share the details. Everyone, great morning. सबको ऐसे लगता है great morning क्यों बोलते हैं? And every time I explain wherever I go, because each moment is a morning for us and we need to make it great. And definitely when Mr. Wagle is here, it has to be great. Am I right? So great morning everyone. Thank you. I would like to thank VI, the President, Mr. Prakash Badra. We are Rotarians, and that is how, when I called him and he said, yes, of course you can have this hall for 10th Jan. And thank you so much from all of us. And thanks to Amol sir, thank you so much. Mind without agitation. And for bringing such mind without agitation, nervousness नहीं, डर नहीं, खौफ नहीं, वो mind कैसे लाएंगे? For that we have organized an happiness program, 3 days, 3 hours. So total how many hours? 9 hours. So if we give 9 hours for ourselves, it will be very great. 3 पिक्चर कम देखेंगे साल में, तो ये कोर्स हो जाएगा. So this course is organized on 28th, 29th and 30th of this month, and it's a mega course. And ये Amol sir is going to take this course, and
आई थिंक उनके डेट्स मिलना इतना मुश्किल है, बट वी आर citizens of Vapi, we are really lucky to have those dates. So I wish that जिन्होंने भी हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं किया है अभी तक, वो एनरोल करें, और जिन्होंने कर लिया है वो रिपीट भी कर सकते हैं, बिकॉज एवरी टीचर हैज़ अ डिफरेंट थिंग्स टू गिव. सेम टॉपिक डिफरेंट तरीके से परोसते हैं, है ना. खाना भी हम सबके वहाँ खाना खाते हैं, बट इट हैज़ डिफरेंट फ्लेवर्स, राइट. एक ही चीज़ का ऊंधियू होता है, बट सबके घर का डिफरेंट होता है. सो दैट इज़ द वे आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस अमोल सर्स हैप्पीनेस प्रोग्राम. एंड आपको फॉर्म्स भी दिए गए हैं, सो आप यहाँ पे वो फॉर्म भर के भी हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे आर्ट ऑफ लिविंग कि अभी वॉलंटियर्स नहीं बोलूँगी, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. सो दे आर सिटिंग देयर. प्लीज़ fill up the form and enroll your forms there. And हमेशा हम लोग है ना फॉर्म्स ले लेते हैं, बट आज मैं बोल रही थी इनको कि हम फॉर्म्स टोकन ऑफ मनी से लेंगे, सो दैट विल बी द कमिटमेंट. जैसे सर ने बताया, पैशन तो है, करना है हैप्पीनेस प्रोग्राम, इट्स अ पैशन, बट कमिटमेंट नहीं है. बट व्हेन वी विल गिव विटामिन एम, यस, तो कमिटमेंट आ जाएगा, यस और नो. सो our this happiness program, the charges are 1100 rupees, and we want to give you the commitment of at least 500 rupees and do the commitment of doing the course. And अभी किसी ने बताया था संकल्पा कि कैसे ले, है ना, सर ने उसमें कमिटमेंट बताया, तो ये कमिटमेंट एंड संकल्पा इज सेम. सो आज एक संकल्प ले लीजिए कि we would like to do this happiness program, fill up the forms, and we will be very happy that Amol sir will be taking this course, and I am also going to repeat this course, sir, because you are going to take. So my first form somebody can fill up. Thank you so much, and I invite again Pinkle here. So हर चीज़ का end होता है, isn't it? So she will be doing all those things, but being host, I would like to thank on behalf of Art of Living family to each and every one of you who has spared their valuable time, right? And we want to spread happiness at least throughout Vapi. We cannot reach the world, but let us reach the people in Vapi. So please be a part of it, and thank you so much for sparing your valuable time. And Amol sir, thank you so much. Finally, I would like to take this opportunity to place on record a hearty thanks to all those who have helped us. A big thank you to Amol sir for his efforts towards enlightening us by sharing his secret of joyful leading.